اللہ اللہ۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بچوں، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ولا فہما وتقوا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا بچوں، آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور فیملی کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فیملی میں مزید جو انبیاء آئے، ان کی آگے سے جو نسلیں ہیں وہ کیا کہلائیں، اور ان کی نسلوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ہم لوگ کو نصیحت کی گئی ہے، کیا مسلمانوں کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی آج ہم پڑھیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے کہا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور فیملی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک لیکچر کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی، اور ان سے ان کے 6 بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ 6 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام مدائن تھا، مدائن، اور اسی بنیاد پہ قرآن مجید میں اہل مدین کا ذکر آتا ہے۔ تو اہل مدین جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اہل مدین بھی ایک، جس طرح قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود کا ذکر ہے نا، اسی طرح ایک اہل مدین کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ہے نا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارت تب دی تھی جب قوم لوط پہ عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے آئے تھے۔ تو جب انہوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت سارہ علیہ السلام کو راستے میں خوشخبری دی تھی اولاد کی، ان کو بشارت دی تھی کہ یعنی کہ میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ کہ وہ یعنی کہ ان کی اولاد نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، یعنی کہ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی جا رہی ہے اس پوائنٹ میں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ 16 دفعہ ہے، اور کئی دفعہ تو نام کے ساتھ بھی ذکر آیا ہے نا، اس نام لے کے جیسے کئی انبیاء کا آیا ہے۔ اچھا، حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا جب ہوئے تھے وہ تب ہوئے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جس سال خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا نا انہوں نے، تو اسی سال میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آئی تھنک 12-14 سال کی ایج میں ہوں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اس دوران اسی سال میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسحاق کہلائی، اور آگے سے حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، اور وہ ان کی اولاد آگے سے آل یعقوب کہلائی۔ ٹھیک ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو شادی تھی نا، وہ ان کے ایک طرح سے ان کی ایک کزن کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی کہ تایا یا چچا کی بیٹی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور ان کی شادی کے تقریباً 20 سال بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے جڑواں اولاد دی، یعنی ٹوئنس دیے۔ یعنی ان کو اولاد کا بڑا شوق تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی 20 سال بعد ان کو اس نعمت سے نوازا اور جڑواں بیٹے دیے۔ ان میں سے ایک جو میں نے بتایا آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، ان کی اولاد آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کہلائی، اور دوسرے بیٹے کی اولاد رومی کہلائے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو اپنی والدہ کے لاڈلے تھے بیٹے تھے وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور جو والد کے لاڈلے تھے وہ تھے محیز ان کے، یعنی ایک اور جو دوسرے بیٹے جڑواں میں سے ایک اور بیٹے تھے۔ اچھا، حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنی اولڈ ایج میں آ کے نابینا ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے جو بیٹے محیز تھے نا وہ شکار کے شوقین تھے، وہ شکار کے اس طرح جو بھی شکار کرتے تھے لا کے اسے بھون کے اپنے والد کو وہ گوشت کھلا دیا کرتے تھے نا۔ تو ایک بار انہوں نے پھر سے فرمائش کی اپنے بیٹے سے کہ مجھے کوئی شکار کرنا، جانور لا کے کچھ بھون کے کھلاؤ۔ تو محیز نکل پڑے، شکار کرنے چلے گئے۔ تو ان بٹوین جو ہے نا ان کی والدہ نے جب یہ سنا تو وہ چاہتی تھی کہ ظاہر ایک طرح سے وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے دوسرے بیٹے بھی اپنے باپ سے دعائیں لیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ جب تک وہ شکار کے لیے نکلے ہوئے نا دوسرے بھائی، تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس دوران جو ہے نا ایک بکری ذبح کر کے اپنے والد کو بھون کے کھلا دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اس کے بعد جو ہے نا حضرت اسحاق علیہ السلام نے چونکہ وہ نابینا تھا، انہیں تو نہیں پتا وہ کون لے کے آیا، تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کو یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے مرتبے کی بلندی اور ان کی نسل میں انبیاء اور بادشاہیں
ऐसी दुआएं दी, प्लस उन्हें ये दुआएं दी कि आपको कुशादा रिस्क मिले। यानी उन्हें बड़ी अच्छी अच्छी, और जैसे जैसे वालिदैन औलाद को दुआएं देते हैं, तो वो नबी होने के नाते जैसे उन्होंने ये दुआ दी, तो उनके हक़ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हक़ में अम्बिया की दुआएं तो कबूल हुई, यानी कि उनकी उनकी नस्ल में वाक़ई अम्बिया आए। ठीक है? तो उसमें ये है कि बाद में जब महीज़ जो है दोबारा से वो शिकार वाला गोश्त जो जिसकी फ़रमाइश की थी वो लेके आए, तो वो जब भून के खिलाया उन्होंने अपने वालिद को, तो उनके वालिद ने कहा, तो आप तो मुझे अभी भी खिला के गए हैं कुछ देर पहले। तो उन्होंने कहा, मैं तो नहीं आया था। उनको पता चल गया कि दूसरा भाई आया था। यानी कि सारी जो दुआएँ उनको मिलनी थी वो दुआएँ वो ले चुके। ठीक है? उनके दूसरे बेटे ने उनको 2 दुआएँ मिल गई। लेकिन ख़ैर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने इनका भी खाना खाया और इन्हें दुआएँ भी दी। और लेकिन फिर भी इनके इस बेटे को वो ये बात पसंद नहीं आई थी कि मुझसे पहले वो दुआएँ क्यों ले ली उसने ना। उनकी माँ ने देखा कि ये बड़ा ख़फ़ा फिर रहे हैं, अपने भाई से ख़फ़ा हुए हुए हैं महीज़ जो हैं, और उन्हें फ़िक्र थी ये भाई को नुकसान ना पहुँचा दें, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से जो है ना मशवरा करके उन्हें कहा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, कि आप अपने मामों के पास किसी और शहर में चले जाएँ, यानी कि कुछ अरसे के लिए उन्हें एक-दूसरे से दूर कर दिया कि दोनों भाई लड़ ना पड़े ना। अच्छा, यहाँ मैं एक और पॉइंट आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बनी इसराइल पे चूँकि तौरात नाज़िल हुई थी ना, तो बनी इसराइल ने तौरात में तहरीफ की। तहरीफ का मतलब है कि उसमें थोड़ी-सी अदल-बदल कर दी हुई है। अपनी मर्ज़ी के पॉइंट्स डाल दिए में। तो उसमें तहरीफ में ये है कि बनी इसराइल चाहती थी कि जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है ना, सारी दुनिया ये समझे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ही ज़बीहुल्लाह है, यानी जिनको अल्लाह ताला ने ज़िबा करने का हुक्म दिया था। जबकि हर मुसलमान ज़बीहुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला की राह में ज़िबा किया गया था ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया था ना कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, और वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में था। तो चूँकि तौरात में ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपने इकलौते बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया। जबकि इन लोगों ने ये तहरीफ करके ऐसे लिख दिया कि अल्लाह ताला ने अपने पहले बेटे इसहाक़ को ज़िबा करने का हुक्म दिया। मीन्स कि आप ये देखें कि जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा ही खाना काबा की तामीर वाले साल हो रहे हैं, तो उस टाइम पे तो ये वाक़या हो चुका था, कुर्बानी वाला, ज़बीहुल्लाह वाला। तो इसका मतलब है कि जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था, तो उस वक़्त तो सिर्फ़ इकलौते बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो ये वो क्यों करते थे? ये बनी इसराइल इसलिए करते हैं कि बनी इसराइल को ये हसद है मुसलमानों से कि हमेशा से अम्बिया जो थे बनी इसराइल में आते थे। ठीक है? बनी इसराइल से ही बार-बार अम्बिया आ रहे थे, तो वो चाहते थे कि आखिरी नबी भी इनकी ही नस्ल से आए। लेकिन आखिरी नबी जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से आए। ठीक है? उनकी यानी कि बनी इस्माइल से। तो उस वजह से नबी आखिर ज़मां होने की वजह से मुसलमानों को एक ख़ास हैसियत, एक ख़ास मर्तबा, एक ख़ास मकाम मिल गया हुआ है ना। और हम लोगों को उम्मत वस्त करार दिया गया कि हम लोगों ने कुरान हम लोगों ने इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज करना है। अल्लाह ताला ने ख़ास हम लोग को एक ड्यूटी दे दी हुई है, और इससे पहले ये ड्यूटी बनी इसराइल को दी थी, लेकिन बनी इसराइल ने ठीक से उसे नहीं ना उसे अदा किया। उन्होंने हज़रत मूसा का साथ छोड़ दिया था एक पॉइंट पे आके। तो उस पे अल्लाह ताला बड़ा यानी उनसे नाराज़, एक खफ़ा हो गए, हमेशा के लिए उन्हें धुतकारी भी कौम करार दे दिया। और आज तक देख लो बनी इसराइल का कोई अपना मुल्क नहीं है। यानी इसराइलियों का वो दूसरों पे ही हमला करते हैं या कोशिश करते हैं अपना ठिकाना बनाने की, लेकिन एज़ सच वो अल्लाह के धुतकारे हुए लोग हैं। तो मैं आपको यही बता रही थी कि उनका हसद करने की वजह यही थी कि वो चाहते थे कि आखिरी नबी भी हज़रत बनी इसराइल से ही आए, यानी कि हज़रत इसहाक़ की औलाद से आए। जबकि वो उनके दूसरे भाई यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से आए हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों का एक रुतबा, एक मकाम एक बन चुका है ना दुनिया में। तो दूसरा एक और पॉइंट था कि इस पे एक हदीस भी है कि एक यहूदी आलिम जो था वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमान हुआ, तो उन्होंने इससे पूछा कि अल्लाह ताला ने किस बेटे को ज़िबा करने का हुक्म दिया था? तो ये वो जो आलिम जो मुसलमान हुए थे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की कसम, वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही थे, और ये सारी बात इसराइली जानते हैं, यानी बनी इसराइल जानते हैं, लेकिन वो मुसलमानों से चूँकि हसद करते हैं ना, तो इसलिए वो गलत बयानी से काम लेते हैं। और इसी तरह दूसरा ये एक और कुरान मजीद में है एक बात, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया हुआ है कि ए ईमान वालो, तुम यहूदों ने सारा को दोस्त मत बनाओ। वो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। यहूदों ने सारा भला कौन होते हैं? यहूदों ने सारा होते हैं बनी इसराइल यानी यहूदी, और नसारा यानी ईसाई। ठीक है?
تو बनी वो कह रहे हैं वो यहूद और नसारा जो है वो एक दूसरे के ही दोस्त हैं और जो इनको दोस्त बनाएगा यानी मुसलमानों में से कोई जो भी उनके साथ ज़्यादा दोस्तियाँ करेगा तो वो बेसिकली उन्हीं में से हो जाएगा फिर इसीलिए मुसलमानों को अहले किताब यानी लोगों के साथ उठने बैठने खाने पीने की हद तक ठीक है लेकिन ये नहीं कि दोस्ती करके बस उनकी तरह के ही बनना शुरू हो जाओ ठीक है और इसी तरह एक और पॉइंट है कि यहूदों ने सारा तुमसे हरगिज राजी ना होंगे ये कुरान मजीद की मैं कोट कर रही हूँ यहूदों ने सारा तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चल पड़ो बेसिकली वो उनका क्या मकसद है ये जो जो हमारे आजकल के दौर में सोशल मीडिया की वॉर है इन लोगों ने ऐसे ऐसे फैशन मतलब दुनिया में राइज कर दिया है कि मुसलमान उनसे इंस्पायर होते हैं और उन पे चलने की कोशिश करते हैं उनकी तरह खाना पीना बैठना उठना ओढ़ना पहनना यानी वो उनकी तरह दिखना चाहते हैं बेसिकली उन्हें लगता है यही फैशन है यही उनकी ज़ुबान बोलेंगे तो यही ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्कों की निशानी है जबकि ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो ये हम लोग के लिए एक जिसे कहते हैं ना एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें हमें सोचना चाहिए कि हम लोग उस उनके रास्ते पे तो नहीं चल रहे हम लोग मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमानों वाला फ़र्ज़ ही अदा कर रहे हैं ना और एक और बात है कि एक और हदीस है कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि पहली मस्जिद कौन सी है ज़मीन पर तो उन्होंने कहा कि मस्जिद हराम यानी कि खाना काबा जो मक्का में है ना मस्जिद हराम दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है और उसके बाद उन्होंने कहा कि बैतुल मक़दस कब बनी थी तो उन्होंने बताया कि मस्जिद हराम यानी खाना काबा बनने के 40 साल बाद बैतुल मक़दस तामीर हुआ 40 साल इस तरीके से मैंने जैसे शुरू में आपको पॉइंट बताया ना कि खाना काबा जब तामीर हो रहा था तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की 12-14 साल के थे बताया ना मैंने उन्हीं के आगे से जो पोते हैं ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्होंने 40 साल बाद खाना काबा बनने के 40 साल बाद बैतुल मक़दस की बुनियाद रखी ठीक है और बैतुल मक़दस क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि बैतुल मक़दस किबला अव्वल है पहले किबला यानी कि पहला किबला बैतुल मक़दस था और उसके बाद मस्जिद हराम बना क्योंकि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे तो किबला बदलने के लिए अल्लाह ताला ने जब उनको हुक्म दिया था तो उन्होंने नमाज के दौरान नमाज पढ़ते पढ़ते ही अपना रुख चेंज किया था जिसकी वजह से बाकी मुसलमानों ने भी चेंज किया था रुख उसके बाद से मुसलमानों का किबला मस्जिद हराम हो चुका है तो इसलिए लोग समझते हैं वो लोग ये समझते हैं कि पहले बैतुल मक़दस की तरफ जो पहला किबला था वो बेसिकली वो ही किबला अव्वल है और वही पहली मस्जिद है ऐसा कुछ नहीं है मिसकंसेप्शन है किबला अव्वल शुरू से ही मस्जिद हराम ही है ठीक है और मस्जिद हराम जो अच्छा उसके बाद उसके अलावा ये कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की डेथ जो हुई थी वो 160 या 180 साल की एज में हुई थी और उस वक्त उनके दोनों बेटों वहीं मौजूद थे उनके पास ही और वो अपने वालिद के पहलू में दफन है यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब उनको दफन किया गया हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ठीक है तो आज हमने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के टॉपिक को कवर किया है लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो हम लोगों ने देखी है ना मूवी आले याकूब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ये वो इस उस पे सारी इन चीज़ों का जिक्र है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारी बताऊंगी कि आले याकूब या उनके बेटों का क्या मामला थे और बल्कि उसके लिए तो 2-3 लेक्चर्स चाहिए क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है वो बनी इसराइल काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे जी बच्चों क्वेश्चन इसके लिए रेडी है यस अच्छा अब्दुल्ला आप मुझे बताएं कि जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलादें थीं वो उनकी आगे से नस्लें क्या कहलाईं एक बेटे की औलाद रोमी और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी बनी इसराइल कहलाई अब्दुल रहमान आप मुझे बताएं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई थी खाना काबा के तमीर वाले साल जब खाना काबा की तमीर हो रही थी उसी साल हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई अब्दुल्ला आप मुझे बताएं कि जो बनी इसराइल है उन्होंने तौरात में क्या तहरीफ किया है क्या चेंजिंग की है उन्होंने अपनी किताब में हजरत इसहाक को हम्म ज़बीहुल्लाह करार दिया वो इसलिए करार देना चाहते थे कि वो ये चाहते थे कि दुनिया को ये पता चले कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बनी इसहाक से हैं यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माईल अलैहिस्सलाम से हैं यानी बनी इस्माइल से हैं यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं ठीक है
اور حالانکہ ان دونوں کا ٹانکا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی جا کے جڑتا ہے بیسیکلی. تو وہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں. اچھا, یعنی بنی اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتے ہیں اور بنی اسرائیل بھی. اچھا عبد الرحمن, آپ مجھے بتائیں کہ پہلی مسجد جو ہے وہ کون سی تعمیر ہوئی تھی؟ مسجد حرام جو مکہ میں ہے. جی, اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ. اچھا عبداللہ, آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہود و نصارہ سے متعلق مسلمانوں کو کیا ایک طرح سے ایڈوائس کی ہے؟ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. ٹھیک ہے. وہ تم سے تب تک راضی نہ ہوں گے راستے پر نہ چل پڑو. اچھا عبد الرحمن, آپ مجھے بتائیں کہ بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ مسلمانوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس کہ آنے کے بعد جو مسلمانوں کو جو عزت ملی اس سے بنی اسرائیل نفرت کرتے تھے. ہاں جی, حسد کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں کو ایک مقام مل گیا, آہستہ آہستہ دنیا میں پھیل گئے مسلمان. چلیں ٹھیک ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بلی کو نہیں والا آیا پہنچا دو چاہے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب.